Assalamu alaikum students. I'm here to start your class. Hope so you all are joining. Please kindly keep yourself mute right now. Mute yourself, please. Okay, I just put it down the few values. That is statement of financial position. Again, statement of financial position से पहले मुझे name of the company mention करना चाहिए. तो the name of the company should be here. Company name, and the company name should also be in the center as we have discussed before. Then statement of financial position as on December 31st, 2024, right? So these are all the mandatory things that you need to do. And I will highlight all this. Is this clear? Okay, hope so. That we have already find out one structure. Now we are filling up this structure. Prepaid rent is 10,000 right now. I'm taking the random values, not a specific question right now. Closing inventory is 12,000. Then I filled it up just building, furniture, machinery. Okay, the building value, I'm just taking randomly. It's 25,000. Okay, and then furniture value, I'm taking 15,000, sorry, 14,000. And then machinery, I'm just writing over here 30,000. Okay, and then allowance for depreciation is the 10%, which is already given in the question. मैं यहाँ पे ब्रैकेट में आप लोग के लिए मेंशन कर रही हूँ कि 10% हमारे पास given है. It is 10%. Okay, then 30,000 multiplied by 10 divided by 100 will be the 30,000. So allowance for depreciation आपके पास आएगा 30 का 3,000 आ रहा है. मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे इधर स्क्रॉल कर देती हूँ. So the values will be not merged. Okay. I just want it to be cut and goes in the second line ताकि मैं इसके नीचे लिख सकूं. Yes. 30,000. And then allowance for depreciation 30,000 का 10%, 3,000, right? Please go through how I am writing. First ये देख लीजिएगा. Then हमारे पास जो final value आएगी, that will be 27,000, and which I am writing in this next line, that will be your 27,000, right? जी, till now any confusion? This is the final values. तो मैं इसको बिल्कुल सारी final values को एक alignment में लिख रही हूँ. 25,000 is the final value, जिसमें से कोई भी depreciation charge नहीं हुई थी. 14,000 is the final value, जिसमें से कोई depreciation charge नहीं हुई थी. इसलिए 27,000 को भी मैंने इसी के सीरीज में लिखा हुआ है. अगेन अगर मैं चाहूँ तो अपने में इन तमाम वैल्यूज को भी इसी सीक्वेंस में मेंशन करना चाहूंगी कि ये भी मेरी फाइनल वैल्यूज है. सो आई शुड नॉट कंफ्यूज. दीज आर ऑल माय फाइनल वैल्यूज. ठीक है. ओके. जस्ट डेबिट साइड, हमारे एसेट्स की जो साइड है वो डेबिट साइड है, और जो इक्विटीज की साइड है वो क्रेडिटेड साइड है. मैं आप लोग के असिस्टेंस के लिए यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ. In the examination you no need to write, but for your understanding you should know that your asset side is your debited side and your equity side is your credited side, right? Okay, so currently I am discussing asset sides. एसेट साइड्स में हमारे पास करंट एसेट्स मौजूद है बेटे, जिसमें हमारे पास है 10,000 और 12,000. टोटल एसेट्स ऑफ करंट कितने आ रहे हैं हमारे पास? मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करती हूँ. इट्स योर 22,000, राइट? And then 25,000, 14,000, and 27,000. What will be the total of fixed assets? Ji, who is there? Who is on mute right now? Maz and Saqib, please kindly mute yourself. I request Maz and Saqib, kindly mute yourself. Maz, will you mute yourself? Okay. Again, I want someone from the audience right now. Okay. Hussein, Yusuf, and Hunza, kindly unmute yourself. Hussein, Yusuf, and Hunza, kindly unmute yourself. Yes, ma'am. Okay, Hunza,
Will you let me know what is the total of fixed assets? 25,000, 14,000, and 27,000. What is the total of these three values? Yes, dear. May I know the total of these three values? Okay. Hunza, you are somewhere else. Iftikhar, please mute 66,000. yourself. 66,000. हाँ 66,000. 66 इफ्तिखार बेटे, जब मैं आपसे पूछूं चंदा जब भी बताइए ना. आई वांट एवरीवन आप पार्टिसिपेशन. ठीक है. ओके ओके. थैंक यू सो मच मेरा बेटा. Yes, Hunza, what is the total of these three values? 66,000. 66,000, right? Okay, 66,000 over here of fixed assets and 22,000 is the total of current assets. So now we went total assets. It means 22,000 value should be add on. हमारे पास 22,000 को हम ऐड करेंगे और 66,000 को हम ऐड करेंगे. जो मैं ग्रीन कर रही हूँ, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी टोटल एसेट्स की. व्हाट विल बी द एसेट्स ऑफ योर टोटल वैल्यू? क्या हमारे पास टोटल एसेट्स की वैल्यू है? 88,000. 88,000. डन. एनी कंफ्यूजन? किसी को ये कंफ्यूजन हो रही है कि वैल्यूज मैम ने कैसे लिखी हुई हैं? मिस जी नो दुआ. मैम. 27,000 कहाँ से आया, कैसे लिखा हमने? डेप्रिसिएशन के साथ जो 27 लिखा हुआ है. 27 कहाँ लिखा है मैंने? दिस वन. मिस ये डेप्रिसिएशन के पास. जी मिस. मेरा बेटा 30,000 में से 3,000 माइनस करेंगे 27 आएगा. और हमने 3,000 क्यों ओके मिस. ओके थैंक यू. और 3,000 इसलिए माइनस किए क्योंकि 30,000 का 10% अप्लाई किया था. 10% का क्या मतलब होता है कि मेरे पास ठीक है मिस. 30,000, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 एंड देन डिवाइडेड बाय 100. तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 30,000, 3,000 आएगा ना. ये आपको जी नजर आ, मिस. मैंने आपके लिए सोल्यूशन लिखा है. ये रहा दिस वन. यू कैन सी ओवर हियर, जी राइट? हाँ दुआ. जी मिस. थैंक यू सो मच. आ गया समझ. ओके ओके ओके. ठीक है. एक्चुअली बेटा वो थोड़ा सा इंटरनेट में अगर एक बंदा बोल रहा होता है तो दूसरे की आवाज थोड़ी सी क्लैश हो जाती है. ओके. आई एम जस्ट कमिंग ऑन द क्रेडिटेड साइड. कोई मेरी डेबिट साइड की मिस्टेक फाइंड आउट कर सकता है? एनी वन ऑफ यू कैन फाइंड आउट माई मिस्टेक इन द डेबिटेड साइड? आई वांट माई मिस्टेक. मैम टोटल की लाइन और डबल लाइन आएगी टोटल एसेट्स के नीचे. वेरी वेल डन आमना. याद रखना है कि आपको 2 मार्क्स मिलेंगे फॉर दिस. ठीक है, फॉर अ गुड क्लास पार्टिसिपेशन. राइट. ओके थैंक यू मैम. मोस्ट वेलकम ऑलवेज. अच्छा भाई, अब बाकी सारे लोग भी अटेंटिव हो जाएं क्योंकि मैम जो है वो क्लास पार्टिसिपेशन को फोकस कर रही हैं. एंड आई रियली वांट यू पीपल टू बी प्रॉपरली अटेंटिव क्योंकि आपने मैम की गलती मिस निकालनी है. टोटल करंट एसेट के ऊपर और टोटल नहीं, फिक्स जो मैंने एसेट के पूछा था ऊपर लाइन नहीं आई. हमार जहां मैंने गलती पूछी है बस वहीं करेक्ट करना है. सबको बार बार नहीं करेक्ट करना है. मिस मैं लेट हो जाता हूँ. हाँ, क्या कह रहे हैं बच्चे? क्या कह रहे हैं? ओके. हमारे इज गॉन समवेयर, राइट? ओके. मिस मैंने बोला था मैं लेट हो जाता हूँ. अच्छा ओके बेटे. तो wages due, it's 1,000, right? And then accrued is over here 9,000, right? And your long term, it's only loan, which is your 20,000. Okay, just wait. हमारा कुछ स्ट्रक्चर आगे पीछे हो गया है. Just wait for a while. हाँ, okay. And it is your 20,000. सही है. So what will be the total of the current liabilities? Total of current लिखें या short term? 30,000. 30,000. Okay, it's not 30. Total of current पूछा है बच्चों मैंने. 10,000. हाँ. 10,000. 10,000. And then total will be 30, right?
किसी को कोई कंफ्यूजन है कि यहाँ पे 30 कैसे आया है? नो, वी गेट दिस वैल्यू ओवर हियर, राइट? Okay, now it is your important task. We need to find out the capital start and capital at end. मैं यहाँ पे आप लोग के लिए फॉर्मूलाज लिख रही हूँ. प्लीज बच्चों अपने पास फॉर्मूलाज नोट डाउन कीजिएगा. हमारे पास फॉर्मूला है कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी, राइट? लायबिलिटीज, ये हमारे पास फॉर्मूला कब यूज होता है? मैं आगे इसके ब्रैकेट में लिख देती हूँ. दिस फॉर्मूला विल बी यूज फॉर कैपिटल एट एंड. ठीक है, जब आप लोग को कैपिटल एट एंड कैलकुलेट करना है तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे एसेट्स इज इक्वल्स टू, ओ माय गॉड अभी तो क्लास स्टार्ट हुई है. हाउ इट इज रनिंग टाइम आउट? अभी तो हमने क्लासेस स्टार्ट किए. नहीं, पहले की लिंक डाली हुई ना आप. नहीं, 7:30 की क्लास डाली थी, 7:30 पे ये स्टार्ट हुई है. नहीं नहीं, आपने पहले वाली की हुई है, वही है जो नमाज की ब्रेक दी थी आपने बीच. अच्छा, मेरे पास तो 7:30 क्लास स्टार्ट हुई थी. एनीवे, अच्छा चलो. 7:15 की. ओके ओके ओके, कैपिटल एट एंड, कैपिटल इक्वल्स टू एसेट माइनस लायबिलिटीज, राइट? और हमारे पास एक दूसरा फॉर्मूला होता है कैपिटल एट स्टार प्लस माइनस नेट इनकम देन लेस drawings is equals to capital at end. ये फॉर्मूला हमारे पास कब यूज होता है? कैपिटल एट स्टार्ट के लिए. ठीक है, इवन ये फॉर्मूला बल्कि कैपिटल स्टार्ट के लिए भी नहीं होता, ये सबके लिए ही होता है. बिकॉज इसमें हम नेट इनकम भी फाइंड आउट कर सकते हैं, हम ड्राइंग्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ये सबके लिए ही होता है. ठीक है, अच्छा जी. नाउ आई एम प्रोसीडिंग विद द सॉल्यूशन. आप लोगों को बेटे मुझे कैपिटल एट एंड बताना है, तो आप लोग क्या करेंगे? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, राइट? मैं इसको भी यहाँ पे रेड करी हूँ ताकि हमें पता चले हमने कैपिटल एट एंड किस वैल्यू को निकाला है. सही है. सो आप लोगों ने क्या करना है? टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटीज को माइनस करें. हमारे पास सोल्यूशन यहाँ पे क्या बनेगा? एनीवन कैन गाइड मी? व्हाट विल बी द सोल्यूशन? 88,000 minus 30,000, it is 58,000. 58,000. वेरी 58,000. अच्छा, कौन बोल रहा होता है? मुझे आप लोग की आवाज में जब देखती हूँ तो उस वक्त कोई और बोल पड़ता है. अच्छा, सीपी रह जाती है. 58,000. ओके, सो 88,000 लेट्स 30,000. व्हाट विल बी द आंसर? 58. 58. कैपिटल 58,000. के बच्चों लिख देती हूँ 58,000. एम आई राइट? Yes, yes. ठीक है. Yes, miss. ओके, मैं ड्राइंग आप लोग के पास रैंडमली ट्रीट कर रही हूँ, जो मैं खुद ही से रैंडम ले रही हूँ. एग्जाम में आप लोग के पास बच्चे गिवन होती है. ठीक है, सो इट विल बी योर 14,000 एंड देन नेट इनकम हमने ऊपर कितनी कैलकुलेट की थी? 29020, राइट? हम वही वाली नेट इनकम ले रहे हैं. इज दिस नेट इनकम इज पॉजिटिव और नेगेटिव? दिस आंसर, इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव? Positive. 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 नेगेटिव. नेगेटिव किसने कहा है? वेरी वेल डन. नेगेटिव किसने कहा है भाई? उसको सीपी मैंने कहा मिस. नेगेटिव किसने कहा है? हु सेड नेगेटिव? प्लीज, सीपी के लिए मार्क्स में देंगे ना, बताइएगा नेगेटिव किसने कहा था? मैंने कहा था मिस, मुदस्सिर अली. मुदस्सिर, आपने गलत कहा था बेटे. मेरा जी बेटा, जी. ये आंसर पॉजिटिव है ना? 50,000 में से 20,980 माइनस करोगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा ना शिजादे? ठीक है, Yes, miss. इट इज Okay, योर miss. पॉजिटिव आंसर. सो योर नेट इनकम यहाँ पे पॉजिटिव, देखें यहाँ पे पॉजिटिव का वर्ड होगा. सो योर नेट इनकम विल बी पॉजिटिव. वैल्यू इज 290. हाउ मच? 29020, Yes. राइट? या 29020. अब आप लोगों को कैपिटल स्टार्ट फाइंड आउट करना है. बच्चों इसमें वैल्यूज पुट करिएगा.
कैपिटल स्टार्ट आप लोगों को नहीं पता, हम इसको क्वेश्चन मार्क लिख देते हैं प्लस नेट इनकम। अच्छा, ये वर्किंग जो मैं इस वक्त आपके सामने कर रही हूँ, ये आपने एग्जाम में वर्किंग करनी होगी क्योंकि इसके आप लोगों को मार्क्स मिलेंगे। सो यू शुड नॉट लीव दिस वर्किंग, राइट? इज इक्वल्स टू कैपिटल लैंड विच इज 58,000। अच्छा जी, अब मुझे बताएं कैपिटल स्टार्ट की क्या वैल्यू आ रही है, कैसे निकालेंगे हम? कैपिटल स्टार हमारे पास मिसिंग फिगर है, राइट? अगेन जो चीज मिसिंग फिगर होती है उसको यहीं पर रहने देते हैं, और इज इक्वल्स टू के दूसरे साइड पे जहां पे आपके पास 50,000 ऑलरेडी लिखा हुआ है, 58,000 ओवर हियर। मैम क्वेश्चन मार्क किसको शो कर रही है? मुदस्सिर, एक में मेरा बेटा पूरा एक्सप्लेनेशन होने दीजिए प्लीज। शहजादे, मैं आपको आंसर कर रही हूँ, मैं रिपीट भी कर दूंगी, जस्ट ओके मैम। वेट फॉर अ व्हाइल, ठीक है? यस मैम। ओके। अच्छा, हमारे पास इस वक्त नेट इनकम 29020 मौजूद है। हमने इज इक्वल्स टू की जगह इज इक्वल्स टू को मेंशन करते हैं ताकि आपको पता है ये कैपिटल एन की वैल्यू लिखी हुई है, ये भी मैंने कैपिटल एन की वैल्यू लिख दी है, ठीक है बच्चों? ये आपके पास ड्राइंग्स हैं। जो क्वेश्चन मार्क है वो इसमें कैपिटल स्टार्ट है क्योंकि वो आप लोगों को गिवन नहीं है, राइट? ओके, देन ये दो दो वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं जो इस वक्त ऊपर पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो रही हैं। उनको जब हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो इनकी वैल्यूज, इनका साइन चेंज हो जाएगा। नेट इनकम प्लस से माइनस हो जाएगी, दैट इज 29020, और जो ड्राइंग हमारे पास उधर पॉजिटिव है उधर इधर आके नेगेटिव हो जाएगी, सॉरी उधर नेगेटिव इधर आके पॉजिटिव हो जाएगी। सो योर आंसर विल बी ऑफ द मिसिंग फिगर विल बी विच इज योर कैपिटल एट स्टार्ट। आपके 42980 मिसिंग 40,980. चंदा, एक मिनट, आप इस आपकी मर्जी है, आप इसको मिसिंग फिगर लिखें, ये कैपिटल स्टार्ट भी लिखा रहने दें। हो सकता है आप लोग अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो इसकी वैल्यू नहीं गिवन तो इसको कैपिटल स्टार्ट ही रहने दें, ठीक है? अच्छा, अब मेरी किसी शहजादी ने मुझे आंसर बताया था। जी बेटी, 42980 42,980. ठीक है। 42,980 42,000 ऐसे नहीं बताना है, जैसे पहले एक बच्ची ने बताया था वैसे ही बताया। 42980 नाइन, 42980 एग्जाम में भी ऐसे ही आंसर ऐसे ही पता चलना चाहिए। 42,980, ठीक है जी? इज दिस क्लियर? अब मुझे इसकी वेरिफिकेशन करनी है। मैं इस वैल्यू को यहाँ पे लिख जरूर रही हूँ आप लोगों के कहने पे, ठीक है? हाईलाइट कर लेती हूँ एंड देन मैं लिखती हूँ 42980, राइट? मैंने यहाँ पे आप लोगों के कहने पे ये वैल्यू लिख दी है, ठीक है बच्चों? अब आप लोगों ने इसकी वर्टिकल कैलकुलेशन एक दफा कर लेनी है। सॉरी क्या लाल हुई भी? ओए मेकअप क्या हुआ है गंदा सा? बेटे, अल्लाह बचाए, प्लीज म्यूट, अल्लाह बचाए। बुशरा प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके जी, अब आप लोगों ने इसको वर्टिकल कैलकुलेशन करनी है। 42980 में ऐड करें 29020 और लेस करिए 14,000। क्या आप लोग के पास आंसर 58,000 आ रहा है? यस मैम। ओके, डन। और हमारे पास 30,000 और 58,000 को ऐड करके भी क्या आप लोग के पास 88,000 आ रहा है? Yes, यस miss. मैम। यस मिस। ठीक है बेटे, किसी का कोई सवाल है तो पहले आप लोग पूछ लीजिए। इफ यू हैव क्वेश्चंस प्लीज डू आस्क। You people can unmute yourself. मुदस्सिर, मिस दोबारा से समझा दें मिस। दोबारा से पूरा सवाल समझा दो बेटे। मिस एक क्वेश्चन है, जैसे टोटल सारा है एक इसमें, मिनट, जैसे आपको लॉन्ग पता टर्म में आ है? रहा है और जी हमाद क्या बोल रहे हैं? मिस ये जो टोटल आ रहे हैं, जैसे टोटल करंट एसिड आ रहे हैं, टोटल फिक्स एसिड आ रहे हैं, इसमें लाइन नहीं आएगी कोई? यहाँ पे इस जगह लाइन का टोटल आ ये रहा है। जैसे 20,000 22,000 यहाँ जी यहीं पे, नहीं, इस जगह लाइन नहीं इसके आएगी। ऊपर लाइन नहीं आएगी कोई? नहीं नहीं नहीं, ठीक सिर्फ है। अगर आप चाहें तो या जितने भी करंट एसेस यानी कितने भी एसेस लिखे हुए हो ना, तो उसका जो फाइनल आ रहा हो, जैसे मैंने यहाँ पे लाइन लगाई है, इसके नीचे लाइन आएगी लाइक हेयर, ठीक है? इसी तरह आपके टोटल करंट एसेस आ जाएंगे तो उसके नीचे लाइन लगा सकते हैं, टोटल के नीचे, सही है?
और ये ना डबल लाइन मैंने सेलेक्ट करी हुई है, रुक जाओ, सिंगल लाइन आएगी। ठीक है बेटे, सिंगल लाइन आ सकती है। Miss, I have a question. बेटे मेरे पास डबल लाइन सेलेक्ट हो गई है, आप सिंगल लाइन लगा सकते हैं जी। Who is asking question? Miss, I wanted to know total equities will be equal to total assets. Yes, it is an international. Can you explain how did we derive to that? How will you? Okay, my simple question is this: you people have done double entry, right? And then you people have done ledgers. Then you people have done trial balance. What is the rule for the trial balance? That your debit and credit side should be equal. Simultaneously, the same rule will be applied in SOFP, Statement of Financial Position, that your debit and credit side should be equal, which is proved over here, right?